بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ ہیں فوزیہ یزدانی، اور ہم آپ کو ووٹ پاکستان کے ایک اور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا فاتح کون ہوگا، ہم پہنچے ہیں سندھ میں کراچی، اور کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، بڑا شہر ہے، خوبصورت لوگوں کا شہر ہے، متحرک لوگوں کا شہر ہے۔ تو کل بھی ہم نے وہاں پر قومی اسمبلی کے جتنے حلقے ہیں ان کے حوالے سے بات کی تھی، صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم کراچی کے ان حصوں پہ ہم بات کر رہے ہیں جس پر ہم کل بات نہیں کر سکے تھے۔ ظاہر ہے کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ تو آج ہم جب بات کریں گے تو ان میں جو حلقے آئیں گے وہ قومی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو NA 239 سے NA 250، اور PS یعنی صوبائی اسمبلی کی نشستیں PS 106 سے PS 130 کی ہم بات کریں گے۔ یہ جو حلقے ہیں جن علاقوں میں آتے ہیں کراچی کے، اس میں کراچی ساؤتھ شامل ہے، کیماڑی شامل ہے، کراچی ویسٹ ہے اور کراچی سینٹرل ہے۔ اگر ہم 2018 کے انتخابی نتائج پر ایک نظر دوڑائیں تو یہاں قومی اسمبلی کے جو 11 حلقے ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 نشست حاصل کی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے 7 نشستیں حاصل کی تھیں، اور متحدہ قومی موومنٹ نے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی تھیں۔ صوبائی نتائج کی اگر ہم بات کریں صوبائی اسمبلی کے، تو یہ جو جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں 24 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 نشست حاصل کی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے 12 حاصل کی تھیں، متحدہ قومی موومنٹ نے 8، TLP نے 2، اور ایک اس وقت جو اتحاد تھا MMA کا اس نے 1 نشست حاصل کی تھی۔ اگر ان حلقوں میں ہم ووٹرز ٹرن آؤٹ کی بات کریں، جو مرد ووٹرز کا تناسب ہے، ٹرن آؤٹ نہیں، تناسب مرد اور خواتین کا، تو وہ آپ سے عرض کرتا چلوں۔ ساؤتھ کراچی 54.13% میل ووٹرز ہیں، فیمیل ووٹرز ہیں 45.87%۔ ویسٹ کراچی 57.70% اور خواتین ووٹرز 42.30%۔ سینٹرل کراچی یعنی کراچی سینٹرل 53.76% مرد ووٹرز اور خواتین ووٹرز 46.24%۔ کیماڑی کی بات کریں تو 58.13% مرد ووٹرز ہیں، 41.87% خواتین ووٹرز ہیں۔ بالکل جناب، اور ینگ ووٹرز کی بات کریں تو 18 سے 25 سال کی عمر کے قریباً 26% ووٹرز ہیں ان اضلاع میں جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں، اور 25 سے 36 سال کی عمر میں قریباً 41% ہیں۔ تو ٹوٹل یہ قریباً 68% جو ہے وہ یوتھ ووٹرز ہیں 18 سے لے کر 35 سال کی عمر کے، جس میں 27% جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ ان اضلاع میں تقریباً 50 خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں، جو 16 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ ہیں اور 34 پروونشل اسمبلی کی سیٹوں میں ہیں۔ ان میں 1 پیپلز پارٹی سے، 3 مسلم لیگ نون سے، 4 GDA سے۔ پولنگ سٹیشنز کی بات کریں تو 2851 پولنگ سٹیشنز ہیں ان اضلاع میں، جس میں 10,288 پولنگ بوتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس انفارمیشن کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیفن کی ایک رپورٹ کل لانچ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ الیکٹورل رول کی اسسمنٹ انہوں نے انالیسس کیا ہے، اور اس کے مطابق پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک تو تھا ہی، مگر اب رجسٹرڈ ووٹرز کے حساب سے بھی 5واں بڑا ملک، 5ویں بڑی ڈیموکریسی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان سے 4 پہلے انڈیا، انڈونیشیا، امریکہ اور برازیل ہیں۔ اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آبادی اور ووٹر کا تناسب اگر آپ کو بتاؤں تو پنجاب میں 57% رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ایز کمپیئر ٹو اٹس پاپولیشن، KP میں 53، سندھ اور اسلام آباد میں 50%، بلوچستان میں 36%۔ 136 اضلاع میں سے 78% اضلاع میں 50% پاپولیشن جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹرز میں شامل ہے۔ اس میں اپر کوہستان، لوئر کوہستان، کوہستان پلاس، کیچ، خاران، پنجگور، شیرانی، سراب و شوک، اس میں صرف 30% آبادی جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹرز ہے۔ مگر اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار جب رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بڑھی ہے تو خواتین ووٹرز کی تعداد سب سے زیادہ بڑھی ہے۔ پچھلے الیکشن سے اب تک میں جو 12.8% پہ جنڈر گیپ تھا وہ ریڈیوس ہو کے 9.9% پہ آیا ہے۔ تو اس پہ ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دینا بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے 5 سال میں ان کے پرانے سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید
साहब स्पेशल इनिशिएटिव्स को हेड कर रहे थे अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। उन्होंने बहुत ही पिछले 2 साल में नादरा के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एक्सेसिव ड्राइव्स की कि फीमेल की रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़नी चाहिए। तो एक बात ये हो गई। और जिन अजला में हम कह रहे थे कि जेंडर गैप जो है वो 10% से ज़्यादा है, तो वो नंबर भी कम हो गया है और वो फ़र्क कम हो के पहले 85 थे और अब वो अजला कम हो के 29 पे आ गए। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है और ये आपने जो खबर शेयर की हमारे के साथ, और यकीनन इलेक्शन कमीशन ने जो है इस पर बहुत काम किया है, वो काबिल तहसीन है उनकी जो ये एफर्ट्स हैं, बिल्कुल ज़ाहिर है मटीरियलाइज भी हुई हैं। तो अपने पैनलिस्ट का तारुफ गुफ्तगू करने से पहले हम करवा दें। हमें ज्वाइन कर रही हैं एंकर पर्सन और तजियागार मोहतरमा तंजीला मज़हर। तंजीला, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक, सीनियर तजियाकार। प्रोफेसर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। मेरे भाई जानिब मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर गौरी। आमिर गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शाकिर सोलंकी। शाकिर सोलंकी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि प्रोग्राम से पहले भी हम देख रहे थे इन हलकों में तंजीला के बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, MQM के, PTI के। अब ज़ाहिर है PTI तो जमात नहीं है, तो इंडिपेंडेंट की हैसियत से हिमायत याफ्ता हैं। नबील गबोल हैं, सलीम मांडवी वाला हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बे, कादिर मंदू खेल, फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, बड़े नाम हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल में मुकाबले भी आपको लग रहा है कि सख्त होंगे, टफ होंगे? जी, बड़े होंगे मुकाबले। मेरा ख्याल है कल जो हमने बात की थी कि MQM का इकट्ठे होना बड़ा अहम फैक्टर है और MQM अपनी पॉलिटिकल स्पेस को रिक्लेम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपको याद हो कि इनमें कुछ ऐसे हलके हैं कि जहाँ से जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो MQM ने उस इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया था। उसका बहुत फ़ायदा TLP को हुआ था और वो बहुत जगहों पे जो उनका वोट बैंक है वो बहुत बढ़ गया था और एक आध हलके में तो शायद वो 10,000 के मार्जिन से TLP का कैंडिडेट जो है वो हार गया था। तो अब देखना ये है कि वो मर्जर के बाद कितना रिक्लेम करेंगे। जो बड़े मुकाबलों की आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और MQM में ज़्यादा अहम मुकाबलों की लोगों को तवक्को है, वो जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जानते हैं। लेकिन PTI के फैक्टर को और उनके आज़ाद उम्मीदवारों को वहाँ से आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ जो साबिक MNAs हैं PTI के, वो आज़ाद कैंडिडेट्स के तौर पर इन हलकों में उतरे में, जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब का मैं नाम देख रही हूँ, बाकी जो लोग हैं वो भी वहाँ पे हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनली इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ पे MQM का एक वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसको चैलेंज किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उनको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था MQM के जब वो धड़ों में बंट गई। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ज़्यादा आप कह लीजिए कि बड़े नाम हमें नज़र आ रहे हैं, इनमें जो वोट डिवाइड होने का फैक्टर है, क्योंकि जमात इस्लामी है, TLP है, अब वो डिवीजन किस तरफ जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने को बहुत ज़्यादा, जब कल भी हम बात करते हैं, उन्होंने को बहुत ज़्यादा बात वहाँ पे काम शाम तो किया नहीं है, ना ही उनके पास कोई बहुत अहम कैंडिडेट्स हैं। वहाँ पे जो लोग थे मौजूद कराची की सियासत में, यानी कि मिफ्ता साहब एक बड़ा नाम थे जो पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, ज़ुबैर साहब को टिकट मिली नहीं है, फैसल वाडा का नाम है इनमें जिनको आप भूल रहे हैं कि वो वज़ीर थे, बड़े अहम और हल्का जीते थे। खुर्रम शेर ज़मान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ की जो सियासत है सिंध की बहुत ज़्यादा बहुत मुतहरक और बड़ा नाम थे। तो है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका, लेकिन अब देखना ये है कि MQM का इकट्ठा होना कितना बड़ा डेंट डालेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पक्की है इस बात के ऊपर कि वो इस बार माजी की निस्बत ज़्यादा सीट्स लेगी। तो PTI अगर वहाँ पे पीछे रह जाती है तो कौन उनसे, उनकी जो सीटें, जो बकौल वहाँ की जो मौजूदा जमातें थी वो कहती थी हमारा मैंडेट उठा के इनको दिया गया है। और आपको पता है कि वहाँ पे ना MQM ने 2018 के इंतखाबात के नताइज को उस तरह से माना था, ना ही पीपल्स पार्टी ने जो PTI को सीटें दी गई थी ना उन्होंने माना था कि वो मैंडेट हमारा है। अब वो देखते हैं कि वो मैंडेट वापस जहाँ से आया था वहाँ जाएगा या मजीद डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी दिलचस्प बात आपने की। और ये हम देख रहे हैं आमिर साहब के यहाँ पे पिछले इलेक्शंस के जो नताइज हैं उसमें तो PTI आपको बिल्कुल एक स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। कौमी असम्बली के नताइज भी देखें, सूबाई असम्बली के नताइज देखें, लेकिन अब इंटरेस्टिंग है बात कि जो तंजीला ने कही कि देखें कि जिनका दावा था कि हमारा मैंडेट था उनकी तरफ मामला जाता है या मजीद, ज़ाहिर है इस पर पीपल्स पार्टी भी तो दावेदार है। और इसमें आमिर एक बात ये भी है कि डिलिमिटेशन में किमाड़ी की 2 नई सीट्स यहाँ पर क्रिएट की गई हैं, वेस्ट कराची से 2 कम हुई और साउथ कराची की 1 सीट बढ़ी, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। देखिए 2-3 चीज़ें, इंटरेस्टिंग वाला एलिमेंट तो मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन कल तक जो हमें बताया गया था ना, एक मुकद्दर का जो सिकंदर था,
कराची में भी था वो आजकल रावलपिंडी के नवाही इलाके के अंदर आजकल जो है वो मुकीम है। तो अब उसका ना होना और उसके साथियों का वहाँ से तितर बितर, ये लफ्ज़ आपका जो इस्तेमाल किया तो मुझे अच्छा लगा था, तितर बितर हो जाना, तो ये एलिमेंट जो है क्योंकि आप ये देखें कि जहाँ पर टीएलपी का वोट आया था ना, वो उसके मुकाबले के अंदर या एमक्यूएम खड़ी थी या जो है पीटीआई खड़ी थी। तो जहाँ पीटीआई नहीं है और वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ अगर मुकाबला होगा, ठीक है ना, जो दूसरा कैंडिडेट है या तीसरा कैंडिडेट है या एमक्यूएम का भी कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके मुकाबले में आता तो पता लगेगा कि टीएलपी जो है वो वहाँ पे सिर्फ 2-3 हलकों के अंदर। इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो दोनों बड़ी पार्टीज़ हैं इस वक्त, यानी पिछली दफ़ा तो पीपल्स पार्टी जो है उस बेचारी की जो शोइंग है, यानी एक सीट नेशनल इन हलकों में से एक नेशनल में और एक प्रोविंशियल में, इस दफ़ा उन्होंने अपने जो हैवी वेट पत्ते हैं, यानी जो पीपल्स पार्टी के चेहरे नज़र आते हैं, वो खड़े किए हैं यहाँ पे। अच्छा, उनमें 2-3 हलकों में उनका मुकाबला एमक्यूएम के हैवी वेट्स के साथ है, ठीक है ना। तो ये तो अब इसका मतलब है कि जिस तरह तंजीला कह रही थी ना कि एमक्यूएम के अगर फ़र्ज़ किए सारे धड़े इकट्ठे हो चुके हैं और कहीं को टेसिट सपोर्ट लंदन से भी आ जाए, ठीक है ना, कि मैं तो वहाँ नहीं हूँ लेकिन तुम हो तो मेरे, ठीक है ना, तो हाँ की बात बिल्कुल, ठीक है, तो वो उसमें जो है ऐसा गाना गा आज आमिर जो है ना बहुत शरारती मोड में है, आज गाने आमिर पे शरारती वीडियो भी आ मोड सकती में है, एक वहाँ गाने से। की वीडियो आ सकती है, हो भी आखिर तो कि मेरे मेरे दोस्त बस ठीक है, तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं इस तरह भी हो सकता है कि किसी एक आधी सीट पे जहाँ पे 2 पार्टीज जो हैं वो अपने सींग फंसाए हों और जो नईमुर रहमान वो पता लगे हाफिज़ नईम जो हैं वो डार्क हॉर्स के तौर पर निकल जाए आगे, जमात इस्लामी जो है कोई एक आधी सीट निकाल ले। लेकिन मुकाबला जो है मुझे इस तरह लगता है कि यहाँ पे वो पीपल्स पार्टी, और क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी इस तरह लग रहा है कि इस दफ़ा उसकी एक कोशिश थी कि जो कुछ डॉक्टरिंग या इंजीनियरिंग, ये बड़े मोअज़्ज़ज़ पेशे हैं पाकिस्तान में, तो वो जो कराची में हुई थी उसके बाद अगर कहीं जुगाड़ लग जाए, ठीक है ना, कराची के अंदर, तो कराची के अंदर वो इलाके जहाँ पे वो रिक्लेम कर सकते हैं अपने आप को पीपल्स पार्टी, इस वजह से कि पीपल्स पार्टी पे बड़ा इल्ज़ाम है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रूरल या सेमी अर्बन सिंध की जमात है। आई थिंक इस दफ़ा मुर्तज़ा वहाब जो हैं उन्होंने काम किया है, तो वो जो सारा का सारा एलिमेंट है वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा से इन रोड्स बनाती है कराची के अंदर नहीं। और चूंकि हमने बहुत क्रिटिसिज्म किया अपने प्रोग्राम्स के अंदर नून के ऊपर, जो कि बनता भी है, ठीक है ना, और पीपल्स पार्टी के ऊपर कि कराची को अबैंडन करके जो हम शक्ल बनाते हैं वो एग्जैक्टली वही शक्ल जो कराची की शक्ल है ना, जितनी दिगरगुम कराची की शक्ल है उतनी पाकिस्तान की है, ठीक है ना। तो अगर कराची जो है वो एक शहर हो, जिस तरह लाहौर पे लगता है कि जी बड़े पैसे लग गए, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि इस दफ़ा एमक्यूएम जो है वो रिक्लेम करेगी इस शहर को, और फिर उसके बाद जो मामला हैं, फिर जो हम जिस तरह प्रोग्राम्स के अंदर ताहिर साहब भी बात करते रहे हैं, शाकिर ने भी बात की थी, कि फिर मामला जो है वो उठेगा कि इस शहर का जो कंट्रोल है, मुझे लगता है कि जो इस शहर के इश्यूज़ हैं ना उनके ऊपर डिबेट भी चेंज होगी। ये आमिर जो आप बात करें ना शाकिर, मैं इसको आपकी तरफ अगर लेके आऊँ, एक छोटा पॉइंट सर, जरूर जरूर, कि अभी देखें जीडीए जो है हाँ जी, उसने खवातीन खड़ी कर दी, हाँ ठीक है ना, जी। वो जीते या ना जीते, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि अगर जो उन्होंने टोटल एक्चुअली ताहिर साहब जो आएंगे तो वो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। टीएलपी ने जितनी खवातीन की है वो भी एक बहुत बड़ा एक PLM हाँ, उनका भी वो एक फिनोमेना है। बट शाकिर साहब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हम बात का जब से हम सिंध में शामिल हुए, खासतौर पे कल भी हम कराची की बात, तो मसाइल की बात, अवामी मसाइल का हल करना मकामी हुकूमतों का काम है। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात अभी हुए हैं, हमने उसमें एक मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक नेक्स्ट लेवल देखी है, बहुत अरसे के बाद इतनी हुई। तो जब वो दोनों एक उसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी बड़े हेड टू हेड रहे, एमक्यूएम वहाँ नहीं था, वो मोबिलाइजेशन कितनी इम्पैक्ट करेगी आने वाले इलेक्शन पे? मैं आमिर गौरी साहब मेरे बहुत रहे हैं, बॉस हैं भी, हमारे सीनियर हैं, लेकिन मैं एग्री नहीं कर रहा इनकी Very बात good. से। अच्छी बात। वो इसलिए कि एमक्यूएम, मेरा अपना तजिया है कि एमक्यूएम रिक्लेम शायद इसलिए न कर पाए क्योंकि हमेशा अमूमन हमने ये देखा है, माजी में भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट जिसको मिलती है आगे चल के सूबा उसी को ज़्यादातर इस तरह होता है कि भाई कोई क्लैश ना आए, कोई तसादुम ना हो सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट हुकूमतों के दरमियान। कराची को पहली दफ़ा कैप्चर किया है पीपल्स पार्टी ने, जी हाँ,
یہ تاریخ میں پہلی دفعہ. اور سندھی آبادی جو انٹیریئر MQM تھی نہیں نا وہاں. جو سندھی آبادی نظر تھی نہیں. جو سندھی آبادی سندھ سے انٹیریئر سندھ سے جو نقل مکانی کر کے کراچی میں آباد کرائی گئی ہے، یہ میں جانتا ہوں پرسنلی. کراچی میں سندھی انٹیریئر سندھ سے بہت زیادہ گیا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے ایک سال میں بہت زیادہ ہے. ایک ریزن یہ ہے پیپلز پارٹی کا کیپچر کرنے کا. دوسرا، پیپلز پارٹی نے کراچی پہ فوکس کیا ہے، کام کیا ہے. آپ کراچی کے پہلے کے حالات دیکھیں، امن امان کے، کتنی لاشیں ڈیلی ملتی تھیں، کتنا کرائم تھا. اب کراچی کے وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے. تو یہ کچھ بہتری کی ہے پیپلز پارٹی نے، کام بھی کیا ہے، لوگ بھی انٹیریئر سے آباد کیے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی کیپچر کر لی ہے پیپلز پارٹی نے. اور دوسرا، ایم کیو ایم کو اب ظاہر ہے تقسیم ہونے کا بھی نقصان ہوا، ایم کیو ایم ٹوٹ چکی. ابھی ایم کیو ایم میں میرا نہیں خیال کہ اگر وہ ملے بھی ہیں ایم کیو ایم والے آپس میں تو کوئی بڑا کوئی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے ایم کیو ایم. کچھ لوگ تو چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں، ایم کیو ایم کے اہم رہنما جو ہیں پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. یہ بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا. دوسرا یہ کہ میں اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ کراچی کی اس وقت سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی بن چکی ہے. کوئی مانے نہ مانے، اس وقت ایم کیو ایم ٹوٹ چکی ہوئی ہے. اور اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں، بالکل اشارہ آپ درست کر رہے ہیں. وہی جس طرف عامر غوری صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک تو جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں میئرشپ قائم کی تو متحدہ قومی مومنٹ تو تھی نہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے، تنزیلہ بھی بات کر رہی تھی کہ متحد تو ہوئے ہیں، 3 دھڑے متحد تو ہوئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو طاہر صاحب لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے ایم کیو ایم کا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور اس بنیاد پہ بھی پیپلز پارٹی جو جیسے میئرشپ انہوں نے لی، وہاں پہ کچھ کام کرنے کی کوشش کی، تو یہ ان کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اور ایم کیو ایم کا پھر ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کے بھی مسائل ہیں، اختلاف. ایک دیکھیں تحفظات تو ہیں ایک دوسرے کے یہ بارے بڑا پوائنٹ ہے، لیڈر لیس پارٹی ہے. اور صرف لیڈرشپ کا فقدان نہیں، اس میں کائنڈلی یہ بھی ایڈ کیجئے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا پولیٹیکل لگیج بھی ہے. فار سرٹن ریزنز اس نے کراچی میں امن و امان سے لے کر اس کی ڈیولپمنٹ تک کو امپیکٹ کیا ہے. تو بیگیج ہے، وہ لگیج کہیں نہیں جائے گا. تو لوگ ووٹنگ پچھلے جب میرے حساب سے اگر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ جگہ ملی تو اس لیے ملی کہ they were sick of it. جو بات جاوید صاحب کر رہے ہیں کہ ایک کیرزما آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ اب پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ میاں نواز شریف کی شکل میں تھا، اس کو کیرزما ملتا ہے. اور جو پی ٹی آئی صاحب کا جماعت ان کا اور پیپلز پارٹی کا، وہ اس سے کیرزما اور اپیل جو لیڈرشپ کی ہے اس سے ایم کیو ایم محروم دکھائی دیتی ہے. لیکن اس وقت جو کراچی کا ووٹر ہے وہ کراچی آپریشن سے پہلے کراچی کا جو عام شہری تھا اس کی پہلی ترجیح جو تھی وہ تھی کہ وائلنس اور شہر میں امن و امان کے اوپر اس کا نمبر 1 اس کی پریارٹی تھی، کیونکہ وہ معاشی ہب ہے اور یہاں پہ مارکیٹیں جلدی نہ بند ہو، یہاں پہ اسٹریٹ کرائم نہ ہو. اور جو فنڈامنٹل جس طرح سولنگی صاحب بتا رہے ہیں اس میں ایک جوہری تبدیلی آئی ہے کراچی آپریشن کے بعد. اب جو ووٹر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد اور پی آئی بی کالونی اور یہ جو مڈل کلاس کے بنے تھے اربن ہاؤسنگ کے در، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ وقت کے ساتھ وہ ڈیٹیریٹ کر گئی ہے. جس وقت یہ آبادیاں بنی تھیں تو یہاں پہ لوور اور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے ایک اچھا معیار زندگی تھا. اب اوور اے پیریڈ آف ایئرز ان کا جو معیار زندگی ہے گر گیا اور ان کا فوکس کراچی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، لینڈ کے حوالے سے، بجلی، جو اب وہاں پہ جس کو ہم لسانی ووٹ بینک کہتے ہیں، وہ 2-3 جگہ پہ تقسیم ہو گیا. وہ نیشنل نیریٹو میں جماعت اسلامی کا بھی جو سپورٹر ہے وہ کراچی کا رہنے والا ہے، وہ سابقہ جماعت جو تحریک انصاف ہے وہ بھی کراچی کا رہنے والا ہے، پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا. تو ان کے لیے جو پہلے ایک ان بلاک ووٹ ایم کیو ایم کے پاس چلا جاتا تھا، اس کے اوپر لوگ کراچی کے ساتھ نیشنل نیریٹو ملک کے اوپر ان کی جو رائے ہے اس پہ بھی وہ ووٹ کریں گے آنے والے انتخابات میں. یہ ایک پازیٹیو سائن ہوا ہے کہ اکٹھا ہوا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3-4 حلقے ایسے ہیں جہاں ایم کیو ایم کا مقابلہ مجھے جماعت اسلامی سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہاں کنسنٹریشن آبادی کی اتنی ایتھنک نہیں جتنی سولنگی صاحب بتا رہے ہیں. وہ ود ان دی دیٹ کمیونٹی ہے، وہاں جماعت ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا مقابلہ نکائی دیتا ہے. یہ اب کون سے حلقے ہیں؟ یہ ہیں جہاں حافظ نعیم الرحمان رہے ہیں، یہاں ماضی میں جماعت کے بھی لوگ منتخب ہوتے رہے ہیں، ایم کیو ایم کے بھی منتخب ہوتے رہے.
दूसरी जो बात ये कि लीडरशिप, ये इंटरेस्टिंग मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि कराची पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हर कौमियत का बंदा वहाँ कराची से इलेक्शन लड़ रहा है। ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कराची में हो रहा है। दूसरा प्लस पॉइंट है, यहाँ बरादरी वोट बैंक नहीं, यहाँ आपको गद्दी नशीन, सजादा नशीन, मज़ार का इन्फ्लुएंस नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे। तो यहाँ के लीडर कौन है? यहाँ के लीडर है जो बाज़ार इकॉनमी से निकले हैं। आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग नज़र आएंगे, वो मुजफ्फर अली शजरा हों, इख्तियार बेग हों, वहाँ आपको वहाँ बिल्डर्स भी नज़र आएंगे, ट्रेडर्स भी नज़र आएंगे, यहाँ हमें मजहबी शख्सियात भी नज़र आ रही हैं। जो आप देख लें कि इस दफ़ा इम्प्रेसिव मैं देख रहा हूँ कि अनस नूरानी साहब की जो पार्टी है उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं मुख्तलिफ हलकों में, JUI में। इसी तरह हमें जो ख़वातीन का फौजिया ने पैटर्न बताया है तो बड़ा अमेजिंग है कि किसी और शहर में इतनी ख़वातीन नहीं खड़ी हो रही। और दूसरा एक जो कैंडिडेट आप देख लें, साउथ कराची 3 है, ये NA 241 है, यहाँ से चंद्रम दास को IPP ने टिकट दिया। बिल्कुल ठीक। तो आपको जो कंपोजिशन है वो वहाँ ये नज़र आ रही है कि इस तरह एक नए लोग भी हैं। जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स है उन्हें सेटबैक हुआ है कि जो पिछले 2018 में हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने और बानी PTI ने वहाँ बहुत मोबिलाइजेशन की, जलसे की और उस स्पेस को क्लेम किया। और PMLN उस वक्त मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का वहाँ फैसल बॉर्डर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना एक बड़ी करेजियस बात था और वो क्लोज चला गया। उसके बाद वो उस तरह से फोकस नहीं कर सके। तंजीमी लिहाज से उन्हें ये नुकसान हुआ कि वहाँ मुशाहिदुल्लाह खान साहब कराची का एक बड़ा नाम थे, उनकी डेथ हो गई। फिर ममनून हुसैन जो सदर पाकिस्तान रहे, उनका डेथ हुआ। और तीसरा जो तंजीला ने बताया कि मोहम्मद ज़ुबैर और मिफ्ता इस्माइल कराची। तो कराची में मुस्लिम लीग नून हमें नज़र आता है कि उनके पास इस वक्त बड़े नाम नहीं, उनको ये इस चीज़ का डिसएडवांटेज है और फोकस भी नहीं रहा। पीपल्स पार्टी की जो ये बात कर रहे हैं, वहाँ का वोटर यकीनन सोचता है कि सूबाई हुकूमत किसकी बन रही, उसका ज़्यादा कंसर्न वफाकी हुकूमत से ज़्यादा सूबाई हुकूमत के साथ होता है। बिल्कुल। और MKM हर जो बनने वाली सूबाई हुकूमत होती है या वफाकी उसकी इत्तेहादी भी होती है, तो इन इश्यूज़ के साथ हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ और जो इसकी सक्सेस है MKM की कि उन्होंने मिडिल क्लास जो लोग हैं, ये उनको कहना पड़ेगा गली महल्ले से, उनको न्यू लीडरशिप हमें वहाँ दिखाई देती है। वो मुस्तफ़ा कमाल हों, वो आम लोग जितने उनके कैंडिडेट हैं, उनका प्रोफाइल में एक चीज़ कामिल है कि उसमें कोई वो एथनिक कंपोजिशन पे वो नहीं देख रहे, वो मिडिल क्लास के लोग फोकस कर रहे हैं और अपवर्ड सोशल मोबिलिटी डायनेस्टिक नहीं है, दे आर नॉट पॉलिटिकल एलीट हाउसहोल्ड्स। अच्छी बात है किसी भी सियासी जमात के लिए कि वो अपने इस तरह के उम्मीदवारों को वो इनकरेज करते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले ज़ाहिर है हम जिन इलाकों की बात कर रहे हैं कराची के, उसमें केमाड़ी भी शामिल है। केमाड़ी में जो इंतखाबी गहमा गहमी है उसकी क्या सूरत हाल है, उनके हलकों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारी नुमाइंदा आयशा आफरीन की ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आम इंतखाबात में अब कुछ ही रोज़ बाकी रह चुके हैं और पूरे मुल्क की तरह कराची में भी इलेक्शन की तैयारियां और गहमा गहमी अपने उरूज पर है। मैं इस वक्त कराची के ज़िला किमाड़ी में मौजूद हूं, जो कि आबादी के लिहाज से 7 में, जबकि रकबे के लिहाज से ये ज़िला जो है वो दूसरे नंबर में शुमार होता है। जबकि यहाँ पर कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें NA 242 और NA 243 हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तें PS 111 से 115 तक की नशिस्तों में ये ज़िला जो है मुश्तमिल है। जबकि यहाँ की आबादी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो यहाँ की आबादी तकरीबन 20,68,451 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 5,18,086, जबकि ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है वो तकरीबन 3,73,128 है। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर तकरीबन 596 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर उन पोलिंग स्टेशन के अंदर तकरीबन 2,300 से ज़ायद पोलिंग बूथ मौजूद हैं। इस ज़िले के क्या मसाइल हैं और यहाँ के जो आवाम है उनको क्या तवक्कुआत है आने वाली हुकूमत से, आइए जानते हैं। बिजली नहीं है, रोडों का ये हाल है, पुलों का ये हाल है। दूसरी ये नाले देखो, रोड के किनारे पे सब खुले हुए, कभी रात को एक इसमें गिर जाता है, कभी दूसरा गिर जाता है। जितने भी मसाइल है उसके लिए जो है ना हम लोग कोशिश करेगा, आगे बढ़ेगा, ताकि ये लोग कोई भी आ जावे और उसको हल करें। आज तक किसी भी उम्मीदवार ने MPA या MNA ने हमारे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं किए। यहाँ के आवाम के लिए पानी, बिजली, गैस, तमाम सहूलतों से ये इलाका महरूम है। यानी किसी गौर में हम मायूस हो चुके हैं। गैस का मसला है,
जो ये बिल्कुल ही नहीं है। इन लोगों का मसला हल करें, हमारी आवाज़ आगे जाए, तो यही मुतालिबात है। यहाँ का गंदा इलाका है, जब से बचपन से देख रही ये गंदा इलाका है। जिसको हमारी मसाइल हल करेंगे उसी को हम देंगे। मुल्क के लिए जो बेहतर हो उसको वोट दे, उसको सपोर्ट करे। बस हम जो आने वाली हुकूमत है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हालात है ये जो अमन के वो इनको ठीक कराए। अवामी उम्मीदवार चाहिए और बेहतर होना चाहिए कि अवाम के साथ जो रहता है ना, उसको अस्पताल का भी पता हो, पानी का भी पता हो, बिजली का सब तकलीफ जो उसके साथ है ना, तो उसको उस उम्मीदवार को आगे लाना चाहिए जो अवाम के दरमियान रह रहा हो। शहरी और देही आबादी पर मुश्तमिल इस जिले में 8 फरवरी को तमाम सियासी जमातें अपने अपने मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगी, लेकिन अवाम का मौक़िफ़ यकसा है कि वोट सिर्फ उसे देंगे जिनकी तरजीह उनका बेहतर मुस्तक़बिल होगा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। NA 215 थर पार्कर 1 जंगल में मोर नाचा किसने देखा। रॉयल्टी के पैसे अवाम की फलाह बहबूद पर लगना, इस पे सवालात बहुत सारे। आप दोबारा आके देखेंगे ये पूरे पैसे जो है लोगों पे लगेंगे और आपको और ज़्यादा थर जो है खूबसूरत लगेगा। तो हमारा ये मंशूर है थर के लोगों को बचाया जाए और उनको रॉयल्टी दी जाए। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंशूर बेसिक होना चाहिए खिदमत खल्क। अगर वो खिदमत खल्क करना चाहता है तो किसी तरीके से भी कर सकता है। गवर्नमेंट के मसले में तो गुड गवर्नेंस ही अच्छा मंशूर है। वेलकम बैक वोट पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तंजीला की तरफ। तंजीला, हमने बात की है एक लार्जर लैंडस्केप की, मगर जब पॉलिटिक्स की हम और सिंध की ब्रादर कराची की सियासत की हम बात करें, क्योंकि वो उसका एक बहुत डिफरेंट फ्लेवर है, तो इनकम डिस्पैरिटीज़, जेंडर, कॉम्पोजिशन, ये मसाइल वसाइल को मुझे कई दफ़ा लगता है ओवरराइड कर जाते हैं, क्योंकि इतनी पॉकेट्स बनी हुई हैं एथनिसिटी की, लिंग्विस्टिकली, कि वो कहीं ना कहीं हर पार्टी जो है ना वो डिफरेंट हुक्स को इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट करने के लिए। मगर जब सर्विस डिलीवरी की बात आती है, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को पूरा करना हो, तो फिर सारे, जैसे आमिर ने आपसे लफ्ज़ लिया था, तितर बितर हो जाते हैं। अच्छा, बड़ा अहम सवाल आपने किया। मुझे ऐसे लगता है कि एक तो बहुत हार्ड कोर रियलिटीज़ हैं कराची की कि वहाँ पे वसाइल कम हो रहे हैं, और उनकी जो लड़ाई है ज़ाहिर है वो तो आपको कौमी सतह पर नज़र आती है कि वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं, आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, मसाइल भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जो वहाँ के मसाइल हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जो इस कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी की वजह से जन्म लिए हैं। सारी दुनिया में तो डाइवर्सिटी को लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पेचीदगी की उसको समझा जाता है वजह कि ये डाइवर्सिटी की वजह से मसाइल हैं। उन मसाइल को आप कौमी सियासत में कहीं नहीं देखते, यानी कि आपको वो कौमी बयानिए में कहीं नज़र नहीं आते। किसी सियासी जमात के बयानिए में आपको उन मसाइल पे बात करते हुए कोई जमात आपको नज़र नहीं आती। इवन जो वहाँ की जमातें हैं वो भी बात नहीं करती। MQM कोशिश करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कहीं पे वो इश्यूज़ दब रहे हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करे। उन्होंने काफ़ी सारी पिटीशंस डाली। आपको पता है फारूक सत्तार साहब जो हैं वो पानी की तकसीम और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। लेकिन आई वुड एग्री दोनों बातों से। एक तो ये कि कैरिज्मा नहीं है, एक लीडरलेस जमात
और उनमें मुस्तफ़ा में तो कैरिज़मा है, लेकिन मुस्तफ़ा साहब ने जब लड़ा इलेक्शन या वो जब पीएसपी अपनी जमात चला रहे थे तो क्या वो कैरिज़मा उनके काम आया था? नहीं, वो किसी के अपॉइंटेड मेयर और नाज़म के तौर पर कुछ और थे। जब वो खुद अपने आप को एक लीडर के तौर पे असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो कुछ और थे। एमक्यूएम के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट भी जुड़ गया है लोगों का। जिस तरीके से वो जोड़ तोड़ करते उनके लिए वो पड़ती होती थी कि तोड़ी जो उसने मुझसे तो जोड़ी रकीब से, इंशा तू मेरे यार का बस जोड़ तोड़ देख। तो वो जोड़ तोड़ उन्होंने ऐसा किया है कि उसमें जो उनका नजरिया है बुनियादी तौर पर वो बहुत पीछे रह गया। आप उनको देखें, वो सबके इत्तेहादी बनते रहे। मतलब कहीं पे तो आपको कोई नजरियाती पॉलिटिक्स का कोई वो एलिमेंट कहीं पे रखना चाहिए था। यानी कि ऐसा भी हुआ कि जहां मरकज में जिनके साथ इत्तेहादियों के तौर पे बैठे हुए हैं, सूबे में उनकी हिस्ब इख्तिलाफ है आप। तो उनकी सियासत में एक ये मुझे लगता है कि ट्रस्ट का जो एलिमेंट है ना वो बहुत कम हुआ है। अब वो इकट्ठे होके क्या वो कर सके, हमें शक था उनके टूटने में भी किसी पे, उनके वापस इकट्ठे होने पे भी हमें शक है। अभी तक शक है कि किसने इकट्ठा किया, अचानक से कैसे इकट्ठे हो गए। हमें वो इंडिजिनस एक प्रोसेस या ऑर्गेनिक नहीं लग रहा था। तो ये मसाइल हैं एमक्यूएम को जो दोनों एंड पे कराची के मसाइल को शायद ओवर शैडो करते। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली बहुत काम किया है। पीपल्स पार्टी में एक नई लीडरशिप आई है, वहाँ पे बड़े यंग बड़े एक्टिव लोग आए हैं। उन्होंने जो टीम बनाई है, नासिर साहब, शर्जील, सईद गनी साहब और मुर्तज़ा, ठीक है, शाजिया, फिर उन्होंने एक नौजवान सीएम यानी कि कदरे नौजवान सीएम को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो ये जो उनकी एक आप कह लीजिए कि काम है। लेकिन जो कल बात हुई थी ना वो बड़ी ज़रूरी है कि बिलावल साहब को किसी शहर के साथ अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को अलाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू ओन अ सिटी। आई थिंक कि वो बड़ा जरूरी होगा पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये यहाँ पे लेकिन एक बात है, एक तो आमिर गौरी साहब जो बात करना चाह रहे थे शाकिर सोलंकी साहब, उस्ताद शागिर्द वाला एक मामला तो है, उस पर तो आपने बात करनी ही करनी है। लेकिन एक बात आमिर गौरी साहब की, एक हमें जो एक इलेक्शन से पहले भी एक अलायंस हमें दिख रहा है, उसमें एक अलायंस हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में दिख रहा है, एक हमें मुस्लिम लीग नून की शक्ल में दिख रहा है, जिसमें हमें ये दिख रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कुछ मामलात किए हैं, डिस्कस भी किए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरफ तंजीला ने भी इशारा किया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी से भी इंतखाब अलायंस करती रही है। फिर ऐसा भी हुआ कि मरकज़ में वो किसी और की इत्तेहादी थी, वहाँ पर हिज़्ब इख्तिलाफ थी। अब भी आपको लगता है कि एक बड़ा जो एक इंतखाबी तो नहीं लेकिन बाद में भी जो एक इत्तेहाद बनेगा हुकूमत की तश्कील में, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो झुकाव है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा। और आमिर में इफ़ आई मे ऐड, क्योंकि आप दोनों इसी पे बात करेंगे, क्यों हमें ऐसे लग रहा है कि हम जहाँ कहते हैं कि सर्विस डिलीवरी होती है, आई एम स्टिल स्टक, क्योंकि कराची का बहुत बड़ा मसला सर्विस डिलीवरी है कि परफॉर्मेंस पर लोग वोट देते हैं या नहीं देते। तो अगर परफॉर्मेंस पे वोट देते तो जैसे तंजीला कह रही थी, तो फिर मुस्तफ़ा कमाल का ने बहुत ज़्यादा लोग एज अ मेयर परफॉर्म किया था, मगर वो ख़ुद को लीडर साबित ना कर सके। एक बात, दूसरा वो क्यों हम एमक्यूएम का एक लगेज है, और दूसरा उन्होंने अब अपनी हैसियत को एक यूनिवर्सल प्लग क्यों बना लिया है कि जो वफाक में कहीं पर भी प्लग हो जाएगा एंड वो काइंड ऑफ टिल्ट द बैलेंस। दो तीन बिल्कुल डाइवर्जेंट चीज़ें हैं जो आपने पूछी हैं। तारीख़ के औराक से अगर एक आपको बात बता सकूं, मैं उस दिन लंदन में उस कमरे में मौजूद था जहां पे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कराची की लीडरशिप है उसको ये बताया, लीडरशिप को, और उनका जो फ़िक्रा था कोट एंड कोट कि जो इलेक्शन होने थे मेयर के, उसने कहा कि इलेक्शन कुछ भी हो, मुस्तफ़ा कमाल की तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये लड़का कराची का अगला मेयर होगा। तो हमें तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल का नहीं पता था कि ये कौन है। 3 महीने के बाद इलेक्शन हुए तो पता लगा वो मेयर बन गए। तो वो जिस तरफ इशारा कर रही थी ना कि कहीं से वो डोरियां जो हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें जो नौजवानान और बुजुर्गान हैं एमक्यूएम के, उनको ये पता है कि अगर फ़र्ज़ किया वो इस दफ़ा इकट्ठे होके जो कुछ उन्होंने बेचना है अपने उन लोगों को जो किसी डर की वजह से उनको वोट डालते रहे हैं या किसी उम्मीद पे, वो उनको डेफिनेटली जाके बताएंगे कि क्या पीपल्स पार्टी ने आपके लिए कुछ डिलीवर किया या नहीं किया। एक हिस्ट्री है इस शहर की पॉलिटिक्स की। तो वो चीज़ कि अगर तो आपको इन्होंने कुछ डिलीवर किया है तो वोट द वे यू वांट, अगर नहीं है तो जो अपना फोर्ट्रेस है उसको होल्ड करें, ठीक है ना, चाहे वो छोटा ही हो, तो ये एलिमेंट करेगा। दूसरी बात जो बड़ी है
देखें इस सूबे के लिहाज से जो नेशनल पॉलिटिक्स है और जो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड दैट इज़ वाई जो मैं बात कर रहा था कि देखें जिस पे बात पे शाकिर जो है उसने डेफिनेटली जो ऐड किया है मैं उसको रिबाट नहीं कर रहा। जरदारी साहब ने इतने बड़े नाम जो है ना अपनी पार्टी के जो उनके पास तुरप के पत्ते हैं वो इसलिए नहीं उतारे कि ये यहाँ हार जाएं, क्योंकि अगर ये हार गए यहाँ पे तो फिर उनके पास इस्लामाबाद में कौन होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हमें नहीं पता पंजाब में उनके तुर्क के पत्ते उनके साथ जो है मंजिलें मारते हुए इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे ये नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है, लेकिन जो मैं ये कह रहा था कि जो कराची की 22 सीटें हैं ना उसमें से जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा था वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल असेंबली की ज़्यादा सीटें मुझे लगता है एमक्यूएम जीतेगी, चाहे एक सीट ही ज़्यादा जीत ले, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत अरसे के बाद पीपल्स पार्टी एक धूम धड़के के साथ कराची में एंटर होगी और फिर वो तमाम काम जिसका इशारा किया इन तमाम नामों की तरफ से जो मैंने लिख के रखे हुए थे, तुमने वहां से बैठ के नकल मारी है, ठीक है ना, कि नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तजा वहाब, राजिया, फिर सबसे बड़ी मुराद अली शाह, उसको बड़ी कुछ सुनना पड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत स्टेडफास्ट किस्म का पॉलिटिशियन है, उसने सब कुछ सुना है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, हमने कभी ये चीज़ें डिस्कस नहीं की कि पीपल्स पार्टी के पास और PMLN के पास ये वॉटन बिजनेस स्कूल से या मतलब अमेरिका के टॉप स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, वो लगते नहीं है शक्ल से, या उनको अभी तक मौका नहीं दिया तो, लेकिन प्रोविंशली चूंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो होल्ड करेगी सिंध को, और वो ये चाहेंगे कि उनका जो कराची के अंदर फुटप्रिंट है वो इतना बड़ा हो गया ताकि आने वाले वक्त में ये याद रखें। मेरा ये ख्याल है क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स जो है बहुत सारी वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है। इस वक्त बिलावल जो है ना ही वो जो अभी जो मर्जी कहें, मेरा ख्याल है उनके वालिद एक शातिर पॉलिटिशियन के तौर पे ये नहीं चाहेंगे कि बिलावल को एक ऐसे तालाब में फेंका जाए जहाँ बहुत बड़े बड़े अभी किरदार मौजूद हैं, मैंने मगरमच्छ नहीं कहा, ठीक है, नो नेगेटिव पॉलिटिक्स, वो लेकिन उसको चबा के फेंक देंगे बेचारे को, ठीक है ना। तो अगर उसने जो भी बनना है और फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो रोल अदा करना है, ठीक है ना, अगर वो करना चाहेगा तो फिर इस दफ़ा तो जो है वो इस लेवल को बढ़ाएंगे, चैलेंज को, यानी एक से ज्यादा जितनी भी नशिस्तें वो ले लें ये उनका एक सक्सेस ही होगा। मैं ये बता रहा हूँ, देखें उन्होंने जो काम किया है, देखें ना, ऐसे की वक्त पे मुर्तज़ा वहाब जो है वो मेयर बने हैं कराची के, और उन्होंने जो काम किया ग्राउंड पे के देखें जो हमने किया है इसको हम जो है 10 दर्जे आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। और फिर ये जो लोग बैठे होंगे यहाँ पे इनके साथ, आई थिंक मुझे नहीं पता कि नेशनल असेंबली की जो हैयत है वो किस तरह सामने आएगी, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जो है एक ऐसे वक्त में जबकि PTI वहाँ पे नहीं होगी या कम ताकत में होगी, तो फिर ये मुकाबला जो है, जैसे मैं कहा कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि पाकिस्तान शुड मूव टुवर्ड्स लार्जली टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जहाँ अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मजबूत हों और बाकी लोग जो लोकल बॉडीज की आप बात कर रही थी ना कि बुनियाद जो बन रही है आर्गुमेंट की, और आमिर गौरी साहब भी वो इसी बुनियाद पे बन रही है कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त वहाँ की मेयरशिप है, और जब आप सर्विस डिलीवर करेंगे, आप काम करेंगे, जो फौजिया यज़दानी साहिबा के भी पसंदीदा टॉपिक है, मकामी हुकूमतें, और हम सबका ये होना चाहिए, मकामी हुकूमतें बनेंगी, डिलीवर होगा, डोर स्टेप पे मसाइल हल होंगे, वो पार्लियामान में जो बैठे हुए हैं वो कानून साजी करेंगे, तो तभी मामलात आगे बढ़ेंगे और उसी का फायदा होना है। और एक लाइन अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि शाकिर साहब के बाद मैं चाहती हूँ कि ताहिर साहब भी इसी बात के ऊपर बात करें कि मुस्तकबिल से ज़्यादा ना हाल की सियासत मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। आई वुड नॉट प्राइमरीली से कि वो 2 पार्टी सिस्टम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में होनी चाहिए और पार्टीज ताकि लोगों के पास ऑप्शंस हों, एग्जैक्टली। मगर एक बयानिए की मुस्तकबिल और हाल की सियासत के साथ चीज़ जुड़ी है, बयानिए की सियासत, जिसके साथ खौफ का फैक्टर हमेशा, फियर फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं, वो हमेशा रहा है, मगर इसको उम्मीद में कैसे बदलना है, मेरे लिए ये बड़ा अमेरिका में आपको 2 पार्टी सिस्टम बुरा नहीं लगता है ना? मैं बरतानिया में हमें लगता है। अगर शाकिर साहब इजाजत एक जुमला फेंक दूं आपको कि ये जो आप कह रहे हैं ना ऑप्शंस, वो ऑप्शंस जमहूर के लिए होने चाहिए ना, जमहूरियत को इधर उधर करने के लिए ऑप्शंस नहीं बनना चाहिए। ये बात सही है कि वो पार्टी जमहूरियत को मजबूत करें, अगर नई पार्टियां अगर लूडो खेलने के लिए बननी है तो वो नहीं बननी चाहिए। मैंने पहले भी जो कहा जा रहा है ना वो ये है कि देखें जमहूर को जमहूरा ना बनाएं। जी अच्छा, मैंने पहले भी कहा है कि सिंध में, मैंने पहले कहा था पहले प्रोग्रामों में कि सिंध में सिंधियों के पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो सारे कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ नून लीग भी ऑप्शन नहीं है सिंध में, हमारे यहाँ PTI ऑप्शन नहीं है, कोई भी जमात ऑप्शन नहीं है, पीपल्स पार्टी ही है।
تو آپشن ہونے چاہیے. MQM کیوں ذرا quickly ہمیں بات یہ کرنی ہے. دو جماعتیں نہیں ہونی چاہیے, 3 جماعتیں ہونی چاہیے, 4 ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کے پاس آپشن ہونے چاہیے. اور میں عامر غوری صاحب کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ کراچی میں ظاہر ہے MQM کا ایک اپنا اثر رسوخ رہا ہے. MQM نے تو MQM کو یقینی طور پر MQM سیٹیں زیادہ لے گی. پیپلز پارٹی سے چاہے 1 لے 2 زیادہ لے, لیکن زیادہ لے گی. لیکن پیپلز پارٹی نے یہ جس طرح انہوں نے نام گنوائے, یہ جو اتنے بڑے بڑے تالاب میں پھینکے ہیں بڑے نام, تو یہ ہارنے کے لیے تو نہیں آئے نا. اور دوسری بات ایک اور میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک ایشو اٹھایا تھا کہ MQM کس کی اتحادی ہوگی سندھ میں ان کے ساتھ. یہ صوبائی حکومت اگر پیپلز پارٹی بناتی ہے تو یقینی طور پر صوبائی حکومت کے ساتھ ادھر اتحادی ہوگی. مرکز میں اگر نون بناتی ہے تو مرکز میں یہ اس طرح کے ماضی میں ہوتے رہے. پہلے تو میں بڑے ناموں پہ آ جاؤں تو اگر آپ ریفرنس سے نکال سکیں 1970 کے بعد انتخابات کے اگلے روز جو اخبار شائع ہوتا ہے تو اس کی ایک ہیڈ لائن بچپن سے میرے ذہن میں کہ بڑے بڑے برج الٹ کے. تو بڑے بڑے ناموں کی حقیقت ایک تو یہ, اور پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو لیاری سے بہت بڑا اپ سیٹ تھا, بالکل ہار گئے تھے. تو اس وقت یہ ہے کہ جو ڈائلما ہے, جو خواہش ہم اظہار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ تک محدود ہو گئی ہے, ریجنلائزیشن ہو گئی ہے مین پولیٹیکل پارٹیز کی, اور نون لیگ پنجاب سینٹرک پارٹی ہوگی, اور ان کے اندر کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں دکھائی دیتا کہ اب KP کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہاں کوئی محنت کی ہو تنظیم, کراچی میں 1 رات بھی رہی ہو ان کی لیڈرشپ. اور اسی طرح لاہور الیکشن لڑنے بلاول صاحب آئے ہیں, ویسے ان کے پاس ادھر ہفتہ رہنے کے لیے بھی بڑا مشکل ٹائم ان کے لیے نکلتا ہے. تو یہ ریجنلائزیشن ختم کرنی ہوگی, اور یہ پارٹیز مڈل کلاس ایسپائریشن کو رسپونڈ بھی نہیں کر رہی. مڈل کلاس کیا چاہتی ہے؟ رول آف لا, میرٹ, ٹرانسپیرنسی, کرپشن. پیپلز پارٹی کا جو گورننس ماڈل ہے وہاں یہ فٹ ان نہیں ہوتی, اور جو ڈائنیسٹک ماڈل ہے نون لیگ کا اس کے اندر بھی یہ جو میرٹ ٹکٹ دیتے وقت بھی ہے, جو گورننس پہ بھی کچھ حد تک وہ اساس ہیں اس طرح نہیں. جو MQM کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے وہ انٹرسٹ گروپ کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ہماری اتنی سیٹیں ہیں تو میکیاویلین پالیٹکس میں جتنا شیئر ہمیں مل سکے ہم وہ لیں, اور انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں. تو یہاں اصول پہ نہ نون لیگ کھڑی ہے نہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے, سب نے کمپرومائزز کیا. اور تیسرا یہ پچھلی دفعہ جو سپیس PTI کے پاس تھی وہ میں ایگری کرتا ہوں, فیوریبل سپیس اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی. آخری بات جو لوور مڈل کلاس میں اور مڈل کلاس اکٹھے ہو کے MQM کو ووٹ دیتے تھے وہ اس دفعہ مجھے بریک نظر آ رہا ہے, کیونکہ لوور مڈل کلاس کا زیادہ ایشو مذہبی شناخت کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ TLP کے اور JI کے, جماعت اسلامی کے اور JUI نورانی گروپ کے ہمیں کینڈیڈیٹس اسپیشلی TLP کے ہر حلقے میں بڑے ایکسٹینسو نظر آ رہے ہیں. اور جہاں تک MQM کی بات کی جائے اس کو اور پیپلز پارٹی کی, ان کی تنظیم بھی ہے. الیکشن تو 5 سال بعد ہوتے ہیں. جو تنظیم کا ماڈل MQM نے دیا گلی محلے کی سطح پہ, سیکٹر انچارج اور ایک سیکٹر کو ڈیوائیڈ کیا زون میں, اور وہ اتنا با اختیار ہوتا ہے کہ MNA MPA بھی اس کی ریکمنڈیشن پہ ہوتے ہیں. اب وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں یہ نہیں. تو نون لیگ اور PTI تنظیم کے مقابلے میں وہاں پور نظر آتا ہے, کمزور ہے. بہت بہت شکریہ طاہر نعیم ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے اس سیشن میں. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیں گے, اور بریک کے بعد کراچی کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ نئے ایونیوز اور کچھ نئی چیزوں پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.